برادران ملت اسلامیہ، ہمارے عزیز طلباء اور چھاتروں اور ہماری نوجوان نسل کے لوگوں، آج آپ حضرات نے ہمیں گفتگو کرنے کے لیے جمعے کی تقریر میں جو ٹاپک دیا ہے اور جو ہم نے ٹاپک آج رکھا ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی مہتوپورن ہے۔ آج آپ حضرات یہاں جمع ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے، مرکز اہل سنت ہے، تو آج آپ کو بہت ہی سکون کے ساتھ ایک بات سننا ہے۔ آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ٹیلی گرام، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب، ان کے بغیر ہماری زندگی ایک نامکمل زندگی بن کر رہ گئی ہے۔ یہ چیزیں ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ اور ہماری لائف کا اسٹائل بن چکی ہیں، لائف اسٹائل میں ہماری یہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک چونکہ آزاد منچ ہے، ایک ایسا ساجا منچ ہے جس کی کوئی سیما نہیں ہے۔ اس میں جہاں بہت سے فائدے ہیں تو بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کے اپیوگ میں ہمیں ہمارے بچوں کو بہت زیادہ ساودھانی برتنے کی ضرورت ہے۔ اسمویدھانک، ہانیکارک، بھڑکاؤ، اپمان جنک اور کسی کی بھاوناؤں کو، دھارمک بھاوناؤں کو آہت کرنے والی سامگری ہو یا ملک میں یا دیش میں فساد پیدا کرنے والی اور آپس میں لڑنے لڑانے والی، اکسانے والی، بھڑکاؤ پوسٹیں کرنے سے بہت زیادہ روکنے کی ضرورت ہے، اپنی نئی نسلوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ آج یہ جو کچھ بھی سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہوتا ہے، کسی بھی دھرم پروش کسی کے دھرم کی اہم شخصیت کی شان میں گستاخی کر دی یا اس کی آلوچنا کر دی، کسی دھرم پر یا دھرم وشیش پر، سمودائے وشیش پر، کسی جو ہے وہ علاقے، کسی خاص علاقے کے رہنے والے پر ٹیکا ٹپڑی کر دی، کسی کی رنگ پر، کسی کے رنگ و نسل پر ٹپڑی کر دی، یا کسی کی زبان پر، کسی کی بولی پر، کسی کی تہذیب و ثقافت اور اس کی سنسکرتی پر، کسی کے سماج پر، کسی کے لائف اسٹائل پر ٹیکا ٹپڑی کر دی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج سوشل میڈیا کے منچ سے بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوکتانترک دیشوں میں ابھیویکتی کی آزادی اور اس کی سوتنترتا، اظہار رائے کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، یہ اس کے مول سدھانتوں میں ہے اور اس کے بنیادی اصولوں میں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر طریقے سے جو ہے وہ آزاد ہیں صاحب۔ اب آپ جو ہے وہ کہیں کہ میں تو آزاد ہوں، آزاد بھارت کا ناگرک ہوں، لہذا بیچ روڈ پر چلوں گا، میں آزاد ہوں، مجھے آزادی دی گئی ہے۔ اب بیچ روڈ پر جو ہے وہ چل رہے ہیں صاحب، ٹریفک جام کر دیا آپ نے۔ آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ میں تو آزاد ہوں صاحب، اور پوری رات جو ہے وہ اپنے گھر میں بہت ہی تیز آواز سے ساؤنڈ بجا رہے، تو یہ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ آزادی میں جو ہے وہ، سوتنترتا میں جو ہے وہ پابندی ہے، اور پابندی میں آزادی ہے، یہ مول سدھانت ہے۔ یعنی اس کا مفہوم آزادی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، لیکن اس طرح کے آزاد ہیں کہ جس آپ کی آزادی سے دوسرے کی آزادی جو ہے نا پربھاوت نہ ہو،
मुतासिर ना हो, दूसरी की स्वतंत्रता प्रभावित ना हो। भाई अगर आप आजाद हैं तो दूसरा भी तो आजाद है, तो आपकी आजादी से उसको ऊपर फर्क पड़ेगा तो उसको तो तकलीफ होगी। तो ये जहां सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रसार हुआ है, बहुत ज्यादा समाज में इसका चलन बढ़ा है, वहीं आज जो है नफरत फैलाने के लिए, दंगा भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, किसी के मजहब को नीचा दिखाने के लिए, किसी की मजहबी शख्सियत के शान में गुस्ताखी करने के लिए भी इसके इस्तेमाल का चलन और इस उन्मादी सोच का चलन बहुत ज्यादा बढ़ा है। जरूरत इस बात की है कि जो है वो हम इस जो है वो सोच पर रोक लगाएं, और बहुत जमाने से इसकी रोक लगाने, पाबंदी लगाने की, है ना, जरूरत का एहसास किया जा रहा था। तो अभी आप देखें कि 2001 में 2021 में सॉरी 2021 में एक एक्ट आया, इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारी हुकूमत लेकर के आई, है ना। तो उस 2000 जिसको आईटी अधिनियम 2021 के नाम से जाना जाता है, तो इसका मकसद भी यही था कि सोशल मीडिया मंच से ऐसी सामग्री को अपलोड करने या साझा करने से रोका जाए लोगों को, जो समाज में अश्लीलता और समाज में घृणा, समाज में हिंसा और समाज में लड़ाई झगड़े की भावना पैदा करने का जो रुझान है, उस पर पाबंदी लगाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। ये एक्ट हमें इस बात को बताता है कि अगर किसी ने किसी व्यक्ति की गोपनीयता के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट साझा की जिससे उसकी गोपनीयता पर असर पड़ा, या जो है वो किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के मजहब की इज्जत से जो है वो खिलवाड़ किया गया, किसी के समाज से की इज्जत से खिलवाड़ किया गया, तो इस एक्ट के तहत उस पर जो है वो साइबर क्राइम में कानूनी कार्रवाई होगी। तो हमें हजरात आज आपको बताना है ये कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका धड़ल्ले से हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घर के लोग, हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र, है ना, हमारी नौजवान नस्ल, तो जाहिर सी बात है कि ये अभी मैच्योर नहीं है। ये लोग ये किसी भी चीज को इतनी संजीदगी से और किसी गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने छात्रों को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने घर के लोगों को सचेत करें, बताएं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जहां जो है वो बहुत सी चीजों में मुफीद भी है, तो वहीं जो है वो नुकसानदेह भी है। कहीं नासमझी की वजह से, कहीं जो है वो अनमेच्योर होने की वजह से, कहीं जो है वो किसी गलतफहमी की वजह से, या किसी के बहकावे में आकर के कोई ऐसी पोस्ट जो है वो ना करें कि जिसकी वजह से साइबर क्राइम के तहत आकर के आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाए और आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाए। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जो है वो समाज के ताने बानों को जोड़े, समाज में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दे कि जिससे हिंसा भड़के, हिंसात्मक सोच को बल मिले, या कोई ऐसी सामग्री हम जो है वो पोस्ट ना करें कि जिसका फायदा उठा करके लोग जो है वो समाज को, किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए लोगों को या किसी विशेष समाज से जुड़े हुए लोगों को, है ना, किसी दूसरे समाज या दूसरी कम्युनिटी या दूसरे मजहब के अगेंस्ट और उनके खिलाफ जो है वो भड़काने का काम कर सके। एक बात का और भी ख्याल रखना चाहिए कि देखिए, बहुत सी चीजें जो है वो समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं, तो वो खबर के तौर पर अगर जो है वो एक आध बार चल भी गई, तो उसको जो है वो दलील बना करके अब आप जो है वो उसको चैनल की उस बात को बार बार रिपीट करके बार बार जो है वो सोशल मीडिया पर उसको जो है वो जारी करें, और ये कहें नहीं ये तो चैनल ने जो है वो जारी किया है साहब, तो इसके चैनल का बहाना बना करके इस तरह
اس کو جو ہے وہ विस्तारित रूप इसको देना, یہ بھی جو ہے وہ जुर्म के तहत आता है, साइबर क्राइम के तहत आता है। हाँ, یہ ہے کہ समाचार चैनलों को भी इसका ख्याल करना चाहिए کہ कोई ऐसी खबर نہیں چلانا چاہیے, کوئی ایسا दृश्य نہیں دکھانا چاہیے, کوئی ایسی ویڈیو نہیں دکھانا چاہیے وہاں کہ جس سے کسی ایک جو ہے وہ مذہب کے لوگوں کی بھاونائیں آہت ہوں اور جو ہے وہ ان کو ہے نا وہ ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے, یا جو ہے وہ ان سے ان میں ہنسا کی جو ہے وہ سوچ پیدا ہو۔ ایک چیز کا اور بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ دیکھیے سوشل میڈیا ایک آزاد منچ ہے, ایک جو ہے وہ بہت ہی विस्तारित रूप वाला एक मंच है। यदि आपने इसमें हर आने वाली चीज को दूसरी जगह आगे बढ़ा दिया बिना सोचे समझे, तो आप जो है वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा है ना दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। आप जानते हैं कि इस पूरे विश्व में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे मजहब के भी खिलाफ हो सकती हैं, हमारी शरीयत के भी खिलाफ हो सकती हैं, हमारे मुल्क के भी खिलाफ हो सकती हैं। अब उनकी डाली हुई हर पोस्ट को आपने बिना सोचे समझे आगे बढ़ा दिया तो उनमें वो पोस्टें भी हो सकती हैं जो हमारी शरीयत के खिलाफ हो, उनमें वो पोस्टें और वीडियो और ऑडियो भी हो सकते हैं, वो सामग्री भी हो सकती है जो हमारे मुल्क के खिलाफ हो, जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ हो। तो इसलिए बेसोचे समझे कहीं से भी आई हुई चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और ऐसी सामग्री को अपलोड करने से बचना चाहिए, ऐसे मवाद को सोशल मीडिया पर जारी करने से बचना चाहिए कि जो हमारे लिए हानिकारक है, हमारी शरीयत के लिए भी हानिकारक है, हमारे राष्ट्र के लिए भी हानिकारक है, हमारे समाज के लिए भी हानिकारक है, जिससे जो है वो समाज में बेहयाई फैलती हो, समाज में अनारकी फैलती हो, समाज के ताने बाने जिससे जो है बिखरते हो, या समाज में अमन और शांति का जो वातावरण है उससे जो है वो मुतासिर होता हो, आपसी सौहार्द में उससे जहर घुलता हो। तो ऐसी चीजों को अपलोड करने से, उस ऐसी सामग्री को, ऐसे मवाद को सोशल मीडिया पर जारी करने से सख्ती से आपको बचना है, सख्ती से आपको बचना है। और मेरा ये मैसेज, मेरा ये पैगाम आप दूसरों तक भी को भी पहुंचाइए। दूसरे उलमा की भी जिम्मेदारी है कि वो जो है वो अपने समाज, जिस समाज को वो लीड करते हैं उस समाज को समझाएं। आज इस पर तवज्जो देने की बहुत जरूरत है, वरना ऐसा ना हो कि हमारे नौजवानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ जाए और वो मुकदमात में फंसते ही चले जाएं, फंसते ही चले जाएं। और इन मुकदमात से कितना नुकसान होता है, जो जिसके ऊपर मुकदमा है, मुकदमा कायम हुआ, उसका तो नुकसान है ही, उसके घर का नुकसान है, उसके पैसे का, इज्जत का, सबका जो है वो नुकसान है। इसके साथ साथ हमारे देश का भी नुकसान है कि बढ़ते हुए मुकदमात, इनका बोझ जो है वो देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ता है कि जितने मुकदमा ज्यादा होंगे देश का भी खर्चा उसमें होता है ना। ये बोझ जो है वो थानों पर भी पड़ता है, ये बोझ जो है वो कोर्ट कचहरी में भी जो है वो जो लंबित मामलात हैं बढ़ते रहते हैं, तो ये बोझ जो है वो वहां पे बढ़ता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मुकदमा किसी के खिलाफ कायम हुआ तो इसका नुकसान उसी को होगा कि जिसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका असर जो है उस समाज पर भी पड़ता है जिस समाज से वो बिलोंग करता है, वो मुकदमे जिस पर मुकदमा हुआ है, और उसके घर वालों पर भी उसका असर पड़ता है, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी, उसके दोस्तों पर भी उसका असर पड़ता है। इसके साथ ही साथ इसका असर जो है वो देश पर भी पड़ता है, देश पर भी एक बोझ बढ़ रहा है ये, है ना। थानों पर खर्चा बढ़ता है, कोर्ट कचहरियों में खर्चा बढ़ता है, तो इससे देश की आर्थिक स्थिति व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए आप हजरात से फिर मैं गुजारिश करूंगा, आज जुमे का दिन है, आप हजरात जुमे के दिन जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में आए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप हजरात जो है वो इन बातों पर तवज्जो दें और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से और गैर कानूनी इस्तेमाल से सचेत रहें, बचें, परहेज़ करें और एहतियात बरतें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।